Bismillahirrahmanirrahim. Students, today in this particular online lecture, we'll be reviewing the chapter number 2, which we already covered. We talked about the financial markets. We talked about the financial institutions. We also talked about the four major pillars of finance and what are the financial institutions, how they are connected with financial markets, what are the different financial markets we have, and what is the basic idea and basic classification based on the various characteristics of market we discuss all about in this chapter. So I'm revising all these chapters based on certain features to be added, particularly when we talk about money market instruments. So there are the various money market instruments we have, like treasury bills, we have like commercial papers, we have like terms of deposits, CDs जिसको कहा जाता है, repo agreement or repurchase agreement we have, for federal funds we have, and the other is the foreign bonds, particularly when we talked about euro bonds and foreign bonds. So financial markets, we discuss all these types, we discuss financial institutions, we discuss the role of intermediaries, we discuss the roles of commercial banking as well. So in this particular aspect, we discuss all these financial aspects in detail. So theoretically, I covered this chapter in last lecture online and the physical classes, face-to-face classes as well. Just this is just a revision and just value addition in this particular chapter we talked about. और इसमें जो है आप ये फोकस करेंगे कि particularly इसकी डिटेल्स क्या हैं, because few of the questions might be come into the midterm exam, तो आपको इसको अच्छे तरीके से कवर करना है. और इस रिकॉर्डिंग में certain again tasks will be given to you, वो आपने complete करने हैं, and few tasks is related to the assignment and few tasks is related to the volunteer work. ठीक है, तो वो आपने कवर करना है. So in this particular chapter we talked about financial markets, जिसमें हमने classifications basic discuss की कि based on markets we have two types, primary and secondary. Again, when we talk about based on investments, we have the capital and money markets. Based on time classifications, we have capital and money markets. And based on the investment purpose, we have the commodity and the foreign reserves market. So various types of market हैं. Detail में हमने discuss किया Pakistan Stock Exchange को, because investment in shares are important and one of the major financial institution. Financial statements हमें discuss करने हैं. That is the complete new chapter in this particular chapter number 3 में हम detail में discuss करेंगे. और then further chapter number 4 में financial statements analysis को हम discuss करेंगे, cash flows methods को हम discuss करेंगे. Then we'll be talking about the financial ratios as well. उसकी analysis करेंगे, liquidity, profitability and various segments. Major pillars of finance चार हैं, हमने discuss किया. One is financial markets, जिसमें we have these type of markets like the stock markets, we have bonds market, we have options market, derivatives market, और उसमें अलावा further जो है commodity markets are available. ठीक है, उसके अलावा जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या है. सेकंड पिलर इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो है जैसे हमारा जो है रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हो गया, सेंट्रल बैंक्स हो गए, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हो गई, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होगा, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स हो गया. दीज आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वी टॉक्ड अबाउट. थर्ड आपका है कमर्शियल बैंक्स. बैंकिंग इज अ सेक्टर विच इज अ थर्ड पिलर ऑफ फाइनेंस. एंड फोर्थ इज रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, जो रेगुलेशंस को कंट्रोल करेंगे. लाइक बैंक्स की रेगुलेशन को कौन कंट्रोल करेगा? सेंट्रल बैंक्स कंट्रोल करेंगे. इसी तरीके से फाइनेंशियल मार्केट्स की रेगुलेशन को कौन कंट्रोल करेगा? सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान. सो दीज आर रेगुलेटरी अथॉरिटीज. सो देयर आर 4 मेजर पिलर्स ऑफ फाइनेंस, जो फाइनेंस के जो है पूरी मनी सर्कुलेशन एंड डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल करता है, फाइनेंशियल सिस्टम को. These are 4. One, financial markets we have, one, financial institutions we have, one is banking sector and one is financial regulatory authorities. So ये आपने ज़रूर ज़हन में रखना है. This might be come into the paper. आज हम इस लेक्चर में इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे. There are the classifications of market, तो हम इसमें certain options market and commodity market को भी आज ज़रूर डिस्क्राइब करेंगे. कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट में हमने डिस्कस किया था डिटेल में. डिफरेंस क्या है? कैपिटल मार्केट इज द इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मोर देन 1 ईयर, मोर देन 5 ईयर्स की जब हम बात करते हैं. लाइक बॉन्ड्स की जब हम बात करते हैं तो वी हैव more than 1 years of maturity, more than 5 years of maturity, more than 10 years of maturity we talked about.
इसमें जो है हमारे पास ये आ जाते हैं। उसके बाद वी हैव द बॉन्ड, वी हैव द स्टॉक्स मार्केट। तो स्टॉक्स में भी आप इन्वेस्टमेंट पे एक दिन के लिए नहीं करते, दिस इज लॉन्गर टर्म थिंकिंग, ठीक है। इवन यू कैन सोल्ड दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इनटू द सेकेंडरी मार्केट में आप सोल्ड कर सकते हैं, और उसका भी एक लिमिटेड टाइम पीरियड है, दैट इज वन मोर देन 1 ईयर आपको होल्ड करने हैं शेयर्स, ठीक है। तो देयर आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट्स भी है। उसके बाद मनी मार्केट्स में यू हैव सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स, तो उसमें इंडिविजुअल भी बाय कर सकता है, कमर्शियल बैंक्स भी बाय कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी बाय कर सकते हैं। सो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स भी आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जो है, काफी लोग कहते हैं कि दीज आर फोर, मेजर आर फोर, बट नॉर्मली 6 or 7 मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पर्पस क्या है, यहाँ पे मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूँ। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स का पर्पस क्या है? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स का पर्पस है टू क्रिएट द लिक्विडिटी फॉर द फंड्स, liquidity for the banks, to create liquidity for the financial institutions. For example, जैसे जो है स्टेट, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, उनके पास जो है वो इंश्योरेंस के जो है वो आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, उनको जो है अमाउंट पे करना है, तो इनको लिक्विडिटी की शॉर्टेज हो जाती है। सो दे माइट कनेक्टेड विद द अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक्स एज वेल, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल वो HBL से कांटेक्ट करते हैं और उनको कहते हैं कि वी नीड द अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी, फॉर एग्जांपल 5 मिलियन, ठीक है। और उनको वो कहते हैं कि हम एक्सचेंज में आपको जो है कमर्शियल पेपर्स दे रहे हैं। अब कमर्शियल पेपर्स क्या है? दीज आर ओनली द पेजेस, ठीक है। मिलेगा क्या? फॉर एग्जांपल HBL जो 5 मिलियन उन्हें दे दे 15 दिन के लिए या 1 महीने के लिए। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स का टाइम पीरियड इज लेस देन 1 ईयर, जैसे हमने डिस्कस किया था। नॉर्मली जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उनका मेच्योरिटी पीरियड 3 मंथ्स या 6 मंथ्स होता है, 6 मंथ्स मेच्योरिटी और 3 मंथ्स मेच्योरिटी, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स मनी मार्केट की मेच्योरिटी जो है नॉर्मली 6 मंथ्स होती है या 9 मंथ्स मैक्सिमम, इवन रिपर्चेज एग्रीमेंट्स में, रिपो एग्रीमेंट्स में। तो HBL को क्या मिलेगा? सम अमाउंट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिटेबिलिटी से मिलेगी, इंटरेस्ट उसको मिलेगा। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि हम आपको 5 मिलियन पे जो है 10% ज़्यादा पे करेंगे, ठीक है, और वील रिटर्न दीज इन 30 डेज फॉर एग्जांपल और 3 मंथ्स, तो उसको वापस कर देते हैं। देयर इज अ कमर्शियल पेपर, वो एक पेजेस ऑफ एग्रीमेंट्स उनको दे देते हैं, दैट इज कमर्शियल पेपर। या फिर वो रीपरचेज एग्रीमेंट क्रिएट कर सकते हैं कि ठीक है आप यही पेपर्स हमें वापस दीजिएगा, द सेम अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी वी विल पे यू इन द 3 मंथ्स और 6 मंथ्स पीरियड और 15 डेज। ओवरनाइट भी हो सकता है, 15 डेज भी हो सकता है, 1 मंथ मेच्योरिटी भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हमने ये डिस्कस किया था। तो these are the various type of instruments। फॉर एग्जांपल ट्रेजरी बिल्स होते हैं, टी बिल्स उसको कहा जाता है, सेंट्रल बैंक इशू करेगा, पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इशू करेगा, US में US ट्रेजरी डिपार्टमेंट इशू करेगा, और इसी तरीके से हर कंट्री का जो है वो सेंट्रल बैंक उसको जो है इशू कर सकता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं जिसको हम CDs कहते हैं, टर्म डिपॉजिट्स भी इनको कहा जाता है। म्यूनिसिपल नोट्स हैं, वो भी जो है कमर्शियल पेपर्स होते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया। रीपरचेज रेपो एग्रीमेंट्स हैं, रीपरचेज एग्रीमेंट इन्हें कहा जाता है। बैंकर एक्सेप्टेंस जो है वो भी सर्टिफिकेट्स हैं, वो भी इशू किए जाते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट्स इनका पर्पस ये है, जैसे हमने डिस्कस किया था इन डिटेल में, आप उसको रिव्यू कर लेंगे, ठीक है। मनी मार्केट्स हैं क्या? शॉर्ट टर्म क्रेडिट मार्केट वेयर डेब्ट सिक्योरिटीज हैविंग ओरिजिनल मैच्योरिटीज 1 or less than 1 ईयर। मैक्सिमम कोई होगा जिसमें 1 साल का टाइम दिया जाए, नहीं तो नॉर्मली 3 मंथ्स और 6 मंथ्स मैच्योरिटी भी है। Issued in large denomination, 1 million or more US dollar. Money market instrument have a short maturities, less than 3 months भी होता है और even 1 day भी होता है, ठीक है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर कैरेक्टराइज किसकी वजह से? जो है लो लिक्विडिटी इश्यूज की वजह से इशू किए जाते हैं, और इसमें डिफॉल्ट रिस्क का चांस बहुत ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है लाइक एंग्रो फूड्स, फॉर एग्जांपल उनको लिक्विडिटी के शॉर्टेजेस हो गए, वो आपको कहते हैं कि हमारे साथ जो है रीपरचेज एग्रीमेंट करें। वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को कहते हैं हम आपको रीपरचेज एग्रीमेंट दे रहे हैं, या हम आपको जो है वो कमर्शियल पेपर्स दे रहे हैं, ठीक है, या हम आपको जो है शेयर सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम आपको जो है 6 महीने में पैसे वापस कर देंगे, वी नीड फॉर एग्जांपल जो है 50 मिलियन डॉलर, ठीक है। तो इसमें डिफॉल्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन पहले ही लॉस में चल रही हो सकता है वो पहले ही लिक्विडिटी शॉर्टेजेस उनके ओवर द टाइम एंड ओवर द ईयर चल रहे हो। अगर आप उस कंडीशन में लोन देते हैं, सो यू विल बी चार्जिंग हायर रिटर्न आप उनसे चार्ज करेंगे। तो इसकी वजह से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स पे दिस इज नॉट ओनली द 10%,
बल्कि इवन 20%, 25%, 30% भी चार्ज किया जाता है। एंड देयर इज अ हायर रिटर्न्स, हायर द रिस्क द हायर द रिटर्न। फॉर एग्जांपल, जो कंपनी अब रिस्क लेगी वो समझते हैं कि ठीक है, कंपनी की जो है पोजीशन इस वक्त अच्छी है, फाइनेंशियल पोजीशन, एंड दे कैन रिकवर फ्रॉम दीज लॉसेस एंड लिक्विडिटी शॉर्टेजेस, तो वो उनको लोन दे देते हैं। अदरवाइज देयर माइट बी द वेरियस इश्यूज एज वेल, इश्यूज भी हो सकते हैं, तो उसको देखना पड़ता है। डज नॉट ऑक्यूपाई वन पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन और ट्रेडिंग फ्लोर। मनी मार्केट जो है इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे हमने डिस्कस किए कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसको जो है परचेज कर रहे होते हैं, नॉन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो है इसको परचेज कर रही होती हैं, इवन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे वन ऑफ द टाइम के सेंट्रल बैंक्स ने जो है लोन्स पे करने हैं, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल लोन्स पे करने हैं या आईएमएफ को लोन पे करना है, तो दे आल्सो हैविंग द शॉर्टेजेस। तो स्टेट लाइफ कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान से जो है दे टेकन द लोन, फॉर एग्जांपल इन 2010 अबाउट 50 जो है अबाउट 50 बिलियन, अबाउट 50 मिलियन डॉलर्स। तो स्टेट लाइफ पाकिस्तान ने उनको जो है इशू किया था लोन। तो दे प्रोवाइड द लोन बेस्ड ऑन अगेन द सेम, कमर्शियल पेपर्स नहीं होते यहाँ पे, ट्रेजरी बिल्स इशू किए जाएंगे। गवर्नमेंटल बॉडीज क्या करेंगी, गवर्नमेंटल बॉडीज जो है वो, सेंट्रल बैंक होगा तो वो ट्रेजरी बिल्स इशू करेंगे, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होंगी तो वो म्यूनिसिपल नोट्स या म्यूनिसिपल सर्टिफिकेट्स इशू करेंगे। तो दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन द लिक्विडिटी शॉर्टेजेस। पार्टिसिपेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, पार्टिसिपेंट्स कैन बी द फेडरल रिजर्व हो सकता है, कॉरपोरेशंस हो सकती हैं, कमर्शियल जो है बैंक्स हो सकता है, आपका सेंट्रल बैंक इसमें आ सकता है, इंडिविजुअल्स भी इसको बाय कर सकते हैं या परचेज कर सकते हैं, पेंशन फंड्स अथॉरिटीज़ हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो भी इनको परचेज कर सकते हैं, ब्रोकर्स एंड डीलर्स हैं, वो भी इनको परचेज कर सकते हैं, म्यूचुअल म्यूचुअल मनी मार्केट, म्यूचुअल फंड्स जो है इंडिविजुअल्स भी परचेज कर सकते हैं। सो देर आर मेनी पार्टिसिपेंट्स इन द मनी मार्केट। मनी मार्केट में कोई एक पार्टिसिपेंट नहीं है, मनी मार्केट में इंडिविजुअल्स, हम और आप लोग भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जो है, आप सेंट्रल बैंक जाते हैं, आप गवर्नमेंट के टी बिल्स ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, विच आर वेरी सिक्योर, 6 महीने के लिए आप ले लेते हैं, उस पर सम अमाउंट ऑफ रिटर्न इज गिवन टू यू, और जो है रिटर्न आपको मिलता है और 6 महीने बाद आप उसको कैश करवा सकते हैं। Similarly, these financial institutions help one another by these money market instrument. Liquidity shortages कहीं पे भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो है, जैसे इस वक्त जो है कोविड का पीरियड आ गया, तो पेमेंट्स जो है सबकी फंसी हुई थी। एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस आर इन लॉसेज इवन, तो लिक्विडिटी काफ़ी शॉर्टेजेस थे। तो मैनी ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बड़े स्टेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, लाइक स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो गया, एचबीएल हो गया, फॉर एग्जांपल ईएफयू लाइफ इंश्योरेंस वाले हो गए, इसी तरीके से दे हेल्प आउट द अदर ऑर्गेनाइजेशंस, पर वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प कर रहे होते हैं, इसी तरीके से गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प कर रहे होते हैं, सो दैट दे कैन मैनेज द फंड्स, मैनेज करने पड़ते हैं फंड्स। तो इसकी वजह से मनी मार्केट क्रिएट होती है एंड वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो क्रिएट होते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में भी थोड़ा इसका ओवरव्यू लिया था, यहाँ पे मैं इसको जो है थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ कि ये हैं क्या और इनका मैच्योरिटी पीरियड क्या है, इसके बायर्स कौन से हैं, थोड़ा इसको डिटेल में इसको देख लेंगे। उसके बाद वी विल बी डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट्स को हम एक दफ़ा देख लेंगे to complete this chapter. Just a minute, 1 minute मुझे दीजिएगा, we'll continue with the same.
मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में जो है मेजर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आपके हैं ट्रेजरी बिल्स। हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके देखने हैं कि विच बॉडी इज द इशूइंग अथॉरिटी, इशुएंस अथॉरिटी इसमें कौन सी है, और इसके अलावा हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि मैच्योरिटी पीरियड क्या है, इसमें रिस्क कितना है, रिटर्न कितना होना चाहिए, एंड हु इज द बायर, बायर इसका कौन है। ट्रेजरी बिल्स हमें जो है इशू करता है सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक ये इशू करेगा, एंड वी हैव द डिफॉल्ट रिस्क इसमें कोई नहीं है बिकॉज सेंट्रल बैंक कैन नॉट बी द बैंक करप्ट, बैंक करप्ट नहीं हो सकता, गवर्नमेंट सपोर्ट सेंट्रल बैंक, ठीक है, एंड दिस इज बैक्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। इसी तरीके से अगर आप इसकी डिस्कशन में जाएंगे फर्दर तो हम आप कहेंगे कि देयर इज अ गुड रिटर्न ऑन द ट्रेजरी बिल्स, एंड डिफॉल्ट रिस्क इसमें कोई नहीं है, लो रिस्क और नो रिस्क इवन हम कहेंगे इसमें। Apart from that, when we talking about the return, तो return nominal इसमें तकरीबन 7%, 8% और 10% normally मिल रहा होता है। Why government issues these treasury bills? To recover the liquidity shortages, for example, to pay the loans or for the governmental expenditures. Treasury bills हैं क्या? These are the papers. These are the investment instrument जिसमें जो है individuals can be invested, वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कर्ज उतारो मुल्क सवारों के टाइम जो है ट्रेजरी बिल्स वाज इशूड, और काफ़ी लोगों ने इसको ट्रेजरी बिल्स को परचेज किया था फॉर द लिमिटेड टाइम पीरियड, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, टू रिकवर द लिक्विडिटी शॉर्टेजेस फॉर द पेमेंट्स ऑफ डेब्ट्स। इसी तरीके से जो है द अदर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक गवर्नमेंट के जो है लोन्स की शॉर्टेज हो जाती है या एक्सपेंडिचर्स करने होते हैं, सो वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो बाय कर रहे होते हैं, दे अर्न द गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न। और इवन काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टमेंट्स कर रही होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बैंक जो है वो लोन पे फॉर एग्जांपल 8% जो है पे करती है कंज्यूमर्स को। अगर ट्रेजरी बिल्स पे फॉर एग्जांपल उन्हें 10% मिल रहा होता है, 12% मिल रहा होता है, तो द इन्वेस्टमेंट रिमेन्स द सेम, एंड वो उस पे जो है दे अर्न द सर्विस चार्जेस, सर्विस चार्जेस को अर्न कर लेते हैं। सेकेंड इज कमर्शियल पेपर्स, वन बाय वन हम इसको बल्कि डिस्कस कर लेते हैं, इसमें हमारे पास ये करेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी। ये कमर्शियल पेपर्स हमारे पास क्या है, इसका जो है इशुएंस अथॉरिटी क्या है। सबसे पहले तो इशुएंस अथॉरिटी कैन बी द, ये शॉर्ट टर्म बैंक्स लोन्स होते हैं, दीज कैन बी इशूड बाय द बैंक्स और इशूड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस इवन जिनको लिक्विडिटी की शॉर्टेजेस होंगे। इस पे रिटर्न क्या होगा, इस पे रिटर्न इज वेरी गुड, ठीक है, विच इज मोर देन 10%, मोर देन काइबोर एंड मोर देन द करंट इंटरेस्ट रेट। रिस्क इसमें है, यस, ऑर्गेनाइजेशन में भी डिफॉल्टेड, बंद हो सकता है, लॉसेस हो सकते हैं, बट देयर इज अ गुड रिटर्न इसमें। कमर्शियल पेपर कौन बाय कर सकता है, अदर ऑर्गेनाइजेशन, यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, कमर्शियल बैंक्स हो गए, अदर कॉरपोरेशंस हो गई, दे कैन बाय द कमर्शियल पेपर्स। बिल्कुल टर्म डिपॉजिट्स इंडिविजुअल्स ले सकते हैं, अगर आप कहें कमर्शियल पेपर इंडिविजुअल सर हम और आप ले सकते हैं, नहीं ले सकते, कमर्शियल पेपर इज एन एग्रीमेंट, कमर्शियल पेपर हम और आप नहीं ले सकते। कमर्शियल पेपर ये फॉर्मल बोरोइंग है, शॉर्ट टर्म लोन्स हैं अदर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स जो है वो जैसे टर्म डिपॉजिट्स होते हैं, सीडीज, वो हम आप ले सकते हैं, जैसे कौमी बचत बैंक इशू करता है, या जो है फॉर एग्जांपल सेंट्रल बैंक इशू करती है, या अदर बैंक इशू करते हैं, वो हम ले सकते हैं। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, म्यूचुअल फंड्स का एक पूरा कंप्लीट चैप्टर है, एंड दैट इज द वेरी गुड इनोवेशन इन द फाइनेंस। म्यूचुअल फंड्स हम आगे चल के डिस्कस करेंगे राइट आफ्टर द मिड टर्म कि म्यूचुअल फंड्स क्या है, म्यूचुअल फंड्स की मार्केट क्या है, और फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, सब प्राइम मॉर्गेज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। म्यूचुअल फंड्स का कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट का पूल डेवलप किया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा जो है वो 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना चाहता है, कोई 50,000 इन्वेस्ट करना चाहता है, तो फॉर एग्जांपल एक पूल डेवलप किया जाता है 50, 60, 70, 80 इन्वेस्टर्स का, एक अमाउंट सफिशिएंट अमाउंट सब जमा हो जाता है, फॉर एग्जांपल 5 मिलियन, 10 मिलियन, तो कोई प्लॉट वगैरह ले लिया जाता है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। ऑर्गेनाइजेशन इसको जो है, यानी बैंक्स इसको जो है इशू कर रहे होते हैं, लाइक अलाई बैंक पाकिस्तान में म्यूचुअल फंड्स दे रहा है, यूबीएल बैंक म्यूचुअल फंड्स दे रहा है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल जो है म्यूचुअल फंड्स में जो है अस्करी बैंक म्यूचुअल फंड्स पे काम कर रहा है, सुनहरी बैंक म्यूचुअल फंड्स पे काम कर रहा है, फ्यू फ्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग ऑन, पर हर ऑर्गेनाइजेशन इस पे वर्क नहीं कर रहा, इस पे आपको ये देखना पड़ेगा।
तो म्यूचुअल फंड्स आपके क्या है? म्यूचुअल फंड्स इज अमाउंट ऑफ मनी जनरेटेड फ्रॉम द डिफरेंट कंज्यूमर्स और कमर्शियल इन्वेस्टर्स। जो पूल जो है डेवलप किया जाएगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पूल यूज टू प्रोसीड द रेज फ्रॉम द सेलिंग ऑफ शेयर्स टू इन्वेस्ट इन वेरियस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में जो है इन्वेस्ट करने के लिए। पर्पस इसका क्या है? पर्पस क्योंकि देखें हर इन्वेस्टर को ह्यूज अमाउंट को इन्वेस्ट नहीं कर सकता, स्मॉल अमाउंट भी जो है लोग इन्वेस्ट करें और उनको सर्टेन अमाउंट ऑफ रिटर्न मिले, सो दैट इज इम्पोर्टेंट आइडिया। म्यूचुअल फंड्स का कॉन्सेप्ट ये है कि आप जो है फॉर एग्जांपल कोई 50,000 सबमिट करना चाहता है एज सेविंग्स, वो भी कर सकता है। कोई 1 लाख जमा करना चाहता है, कोई 5 लाख जमा करना चाहता है। तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो है वो शेयर्स में या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कमर्शियल पेपर्स की हमने ओवरऑल डिस्कशन कर ली है, आप इसको रीड कर लेंगे। दैट इज मैच्योरिटीज की क्या होगी? कहा जाता है कि मैच्योर इन 270 डेज, माना 9 मंथ्स में हो सकता है, बाकी इसको 6 महीने में भी इसके डिस्क्लोजर आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वी हैव कमर्शियल पेपर्स हमने कर लिया है। डोमेस्टिक पेपर्स भी होते हैं, फॉरेन पेपर्स भी होते हैं, बिल्कुल इसमें होगा। फॉरेन पेपर्स का कॉन्सेप्ट क्या है? डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन इशू करेगी तो डोमेस्टिक पेपर कहलाएगा। अदर ऑर्गेनाइजेशन, माना मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान की नहीं है, वो इशू कर रही है तो वो फॉरेन पेपर कहलाएगा, क्योंकि आप जो है किसी और कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन में, कॉरपोरेशन में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। Federal funds is also one of the good instruments for the money market instrument. When the institution anticipate insufficient reserves, they often turn to funds market, federal funds market. Here they can borrow reserves from the other institution for an overnight basis. जैसे reserves हैं, for example, federal reserves कम हो जाते हैं कभी कभार। रिजर्व्स जो है क्या होता है? फॉर एग्जांपल हर कमर्शियल बैंक्स के रिजर्व्स 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट या 15% ऑफ इन्वेस्टमेंट सेंट्रल बैंक में रखे होते हैं। इसी तरीके से सेंट्रल बैंक के जो कंट्री के रिजर्व्स हैं वो आईएमएफ के पास पड़े हैं, वर्ल्ड बैंक के पास पड़े हैं। तो वो वर्ल्ड बैंक में जो आपके रिजर्व्स पड़े हैं, अगर वो आपके शॉर्ट हो जाते हैं फॉर द करेंसी डीवैल्यूएशन की वजह से या आपके जो है डेफिसिट्स की वजह से, तो आपको मोर रिजर्व्स वहाँ पे सेव करने हैं। So that can be raised from the various financial institutions and various financial markets. तो उसमें भी जो है various financial markets, commercial banks हो गए, institution हो गए, they issue the federal funds। ठीक है, federal funds के लिए जो है आप उस instruments को issue किया जाता है। Institutions with excess reserves can turn to the Fed funds market to loan these reserves and they earn the interest। माना जिनके पास excess reserves पड़े हैं, for example पहले ही 15% जो है यूबीएल के रिजर्व्स पड़े हैं सेंट्रल बैंक के पास, दे आल्सो इन्वेस्टिंग मोर अमाउंट इन द रिजर्व्स, तो वो कर सकते हैं। फिर उस पे जो एक्सीड अमाउंट करेगा उस पे उनको इंटरेस्ट मिलेगा। फॉर एग्जांपल 15% तो रिक्वायरमेंट है, 10% रिक्वायरमेंट है, पहले 10% रिक्वायरमेंट थी, 10% से किसी के भी एक्सीडिंग में पड़े हुए हैं, क्योंकि अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ होता है बैंक्स के पास, क्योंकि काफ़ी लोग सेव करके चले जाते हैं। इवन करंट अकाउंट्स में ह्यूज बैलेंसेस पड़े होते हैं, सेविंग अकाउंट्स में ह्यूज बैलेंसेस पड़े होते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स में ह्यूज बैलेंसेस पड़े होते हैं, तो दे आर इन्वेस्टिंग इन। तो वो बैंक्स जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिजर्व्स को इंक्रीज कर देती हैं ताकि दे अर्न सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी या इंटरेस्ट, तो उस पर जो है ये लोग कर सकते हैं। ठीक है जी, बाकी ये वही डिस्कशन है कि ओवरनाइट बेसिस पे किया जा सकता है। डिनोमिनेशन इसकी $5 मिलियन कम से कम होनी चाहिए। पाकिस्तान में दैट कैन बी द 50 मिलियन रुपीज़, या जो है 10 मिलियन रुपीज़ भी इवन ऑर्गेनाइजेशंस आर इशूइंग दैट। ठीक है, रीपरचेज एग्रीमेंट को रीपो एग्रीमेंट कहा जाता है। दिस इज अ फॉर्मल एग्रीमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में होगा, इंडिविजुअल्स नहीं कर सकते। कॉर्पोरेशंस जो है इससे बेनिफिट ले रही होती हैं। फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेशंस को शॉर्ट ऑफ फंड्स हो जाते हैं कभी कभार, सो दे हैविंग द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, उनके पास मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में से तरीका होता है रीपरचेज एग्रीमेंट। आप जो है पेजेस इशू करें, वो एक गारंटी डॉक्यूमेंट होगा, अदर ऑर्गेनाइजेशन उसे बाय करेगी या गवर्नमेंट उससे बाय करेगी या गवर्नमेंट भी सेल कर सकती है। ठीक है, उस पे जो है आप लोन लेंगे और उसको जो है जो टाइम डिसाइडेड होगा 10 डेज 15 डेज, तो वही डॉक्यूमेंट्स आप उससे रिटर्न लेंगे, उसी अमाउंट की आप लिक्विडिटी उसे देंगे। इन रिटर्न आप उसको प्रॉफिटेबिलिटी भी देंगे, सम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी चार्ज। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट होगा इन विच सेलर एग्रीज टू सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू द बायर, बाय टू बेक ऑन लेटर डेट। आपको उसी वही सिक्योरिटी दोबारा बाय करनी है। यस, टाइम कैन बी एक्सटेंडेड,
हो सकता है कि अगर आप 15 डेज में भी पे नहीं कर पाए फिर म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ आप टाइम को एक्सटेंड कर देते हैं, तो रिवर्स रेपो भी हो सकता है। रिवर्स रीपरचेज एग्रीमेंट्स माना रिवर्स उसी रीपरचेज एग्रीमेंट को रिवर्स किया जाएगा। मैच्ड सेल परचेज एग्रीमेंट, रीपरचेज एग्रीमेंट व्यूज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव इज इनिशियल बायर। तो तरीका सिंपल वही है, इसमें हम डिफिकल्टी या इतने जो है कॉन्सेप्ट्स में नहीं पढ़ते हैं। तरीका ये है, फॉर एग्जांपल HBL बैंक ने बाय किया रीपरचेज एग्रीमेंट, ठीक है, किससे? फॉर एग्जांपल उन्होंने सेंट्रल बैंक को लोन दिया, सेंट्रल बैंक ने वही एक महीने बाद जो है अमाउंट वो सर्टिफिकेट्स उनसे ले लिए और उनको जो है अमाउंट वापस कर दी। या फॉर एग्जांपल HBL कॉरपोरेशन ने, HBL बैंक ने किसी कॉरपोरेशन को लोन दिया, उनसे वही पेजेस वापस जो है फॉर एग्जांपल पेजेस ले लिए, वो पेजेस उनको वापस देंगे, वो अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी ले लेंगे एंड अगेन द जो है अमाउंट इज गिवन। अब इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल इसमें ये होता है कि वो सेकेंडरी मार्केट में सेलिंग नहीं करें, क्योंकि फिर प्राइस की डिस्टर्बेंस काफ़ी आ जाती है। ऐसे हो सकता है ना, अदर पेपर्स में ये हो सकता था, कमर्शियल पेपर्स में ये हो सकता था, या जो है टर्म डिपॉजिट्स में तो चले इंडिविजुअल्स करते हैं उसमें नहीं हो सकता, कमर्शियल पेपर्स में ये हो सकता है कि आप सेकेंडरी मार्केट में जाके सेल कर दें। फॉर एग्जांपल उसको एक ऑर्गेनाइजेशन ने कमर्शियल पेपर तो बाय कर लिए थे लेकिन उसको भी लिक्विडिटी शॉर्टेजेस हो गए, वो सेकेंडरी मार्केट में उसको सेल आउट कर सकते हैं कि दूसरा बायर उसको परचेज कर ले। ये नहीं कर सकते, इसमें टाइम इज लिमिटेड एंड द एग्रीमेंट इज लिमिटेड, ठीक है। ये हमने जैसे डिस्कस किए कुछ। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, इशूड बाय द कमर्शियल बैंक से, कमर्शियल बैंक से इशू करते हैं। मिनिमम डिनोमिनेशन इसकी 100,000 हो सकती है। फिक्स इंटरेस्ट रेट इस पे होता है, रिटर्न ऑन प्रिंसिपल एंड मैच्योरिटी। जैसे नॉर्मली जो है हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कौमी बचत बैंक हो गया या कमर्शियल बैंक्स में जो है इन्वेस्टमेंट की जाती है सेविंग अकाउंट्स में, ये वही है टर्म डिपॉजिट्स। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द कमर्शियल बैंक एंड मस्ट बी नेगोशिएबल, ट्रेडेबल हो सकते हैं। आपका इंटरेस्ट किसी को इंक्रीज किसी को डिक्रीज ऑफर किया जा सकता है। नॉन नेगोशिएटेड भी होते हैं, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट इज गिवन, ठीक है। थ्रिफ्ट सीटीज भी होती हैं। थ्रिफ्ट का मकसद भी क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय सेविंग्स एसोसिएशन, जैसे हमने डिस्कस किया पाकिस्तान में नेशनल सेविंग जो है कौमी बचत बैंक है, जैसे वो फिक्स्ड अमाउंट के लिए नॉन ट्रेडेबल जो है वो इशू किए जाते हैं सीटीज, जिसको थ्रिफ्ट सीटीज भी कहा जाएगा। क्रेडिट यूनियंस भी इसको इशू करते हैं। पर्पस वही है, पर्पस आपका वही होगा कि सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी गेन बाय द इंडिविजुअल्स आर द अदर कमर्शियल बैंक्स, और इसके अलावा जो है एंड हाउ दे आर डिफरेंट, सम अमाउंट ऑफ रिस्क इज देयर, डिफॉल्ट रिस्क का चांसेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के या इंडिविजुअल्स के। अनलाइक टी बिल्स, टी बिल्स जैसे नहीं है, आपके पास कोई फिक्स्ड एग्रीमेंट नहीं होगा, डिफॉल्ट रिस्क इसमें है। वहाँ पे जो टी बिल्स में कमर्शियल पेपर में रिस्क थोड़ा है, इसमें इसमें देयर इज अ ह्यूज रिस्क इन्वॉल्व, ठीक है। Certificates of deposit issued by foreign branches of commercial banks but denominated in currency branch of home country. यूरो सीडीज भी होते हैं। यूरो सीडीज क्या है? जैसे यूरो बॉन्ड्स होते थे, यूरो बॉन्ड्स क्या होते हैं? अदर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है, बाहर जाके पाकिस्तान की करेंसी में बॉन्ड्स इशू किए तो वो यूरो बॉन्ड्स कहलाएंगे, बाहर वाले लोग उसको ले सकते हैं। पाकिस्तान की फॉर एग्जांपल जो है सेंट्रल बैंक ने पाकिस्तान की करेंसी में ही उधर बॉन्ड्स इशू किए। सिमिलरली फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई यूएस की ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे जो है फॉर एग्जांपल KFC हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, अगर ये इशू करते हैं जो है डॉलर्स में यहाँ पे बॉन्ड्स, तो यूरो बॉन्ड्स कहलाएंगे, ठीक है, बाहर की करेंसी में, बाहर की ऑर्गेनाइजेशन। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय द फॉरेन ब्रांचेस ऑफ कमर्शियल बैंक बट डिनोमिनेटेड इन करेंसी ऑफ द होम कंट्री। आप जो है उसी जो है कंट्री की जो है उसमें इशूड करेंगे तो आप यूरो कहलाएंगे, ठीक है। ये आपके पास आ गया। बल्कि आप जो है फॉरेन सीडीज का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं, अच्छा फॉरेन सीडीज का भी कॉन्सेप्ट इसमें नहीं। फॉरेन सीडीज क्या होगा? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय द फॉरेन ब्रांचेस ऑफ कमर्शियल बैंक बट डिनोमिनेटेड इन करेंसी ऑफ द ब्रांच होस्ट कंट्री। अब इसमें देखें फॉरेन में और यूरो में क्या फ़र्क है। सिमिलरली एज बॉन्ड्स, जैसे होता था ना बॉन्ड्स में फ़र्क है, और यहाँ पे भी वही फ़र्क है। यूरो बॉन्ड्स में क्या होता है? फॉर एग्जांपल यूरो बॉन्ड्स में होगा कि पाकिस्तान की सेंट्रल बैंक है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल बाहर ऑपरेट कर रही है, और उसी करेंसी में वो अगर बॉन्ड्स इशू करती है
वो आपके यूरो बॉन्ड्स कहलाएंगे, ठीक है, वहाँ पे। और कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का मिसाल ले लें, जैसे पेप्सी, पेप्सी कोला इंटरनेशनल इज द ऑर्गेनाइजेशन बाय दी जो है इसराइल, ठीक है। तो अगर वो पेप्सी कोला इंटरनेशनल अगर यहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल बॉन्ड्स इशू करती है और रुपीज में इशू करती है, तो वो यूरो बॉन्ड कहलाएंगे, बिकॉज पाकिस्तान की कंपनी नहीं है, अदर बैंक्स, अदर ऑर्गेनाइजेशन, अदर जो है इंडस्ट्री है, अदर कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो इसराइल की क्या जो है कंट्री बॉन्ड्स इशू करती है आपके जो है उसी में डॉलर्स में फॉर एग्जांपल, तो वो बाहर की कंपनी है और बाहर की करेंसी है, तो उसको फॉरेन बॉन्ड्स कहा जाएगा। इसी तरीके से ये यूरो सीडीज हैं और आपकी फॉरेन सीडीज हैं, ठीक है। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स भी इशू करती हैं दीज ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल केएफसी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशू करता है रुपीज में, तो क्या कहलाएगा, यूरो सीडीज कहलाएगा। अगर फॉर एग्जांपल केएफसी जो है इशू करता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स डॉलर्स में, तो क्या कहलाएगा, वो फॉरेन सीरीज कहलाएगा। ये मेरे ख्याल में कॉन्सेप्ट बहुत आसान है और क्लियर है। अगर यहाँ पे आपको कोई डिफिकल्टी हो तो हम क्लास में भी इसको फर्दर डिस्कस कर लेंगे, या आप उसको थोड़ा गूगल आउट कीजिएगा, तो थिंग्स विल बी वेरी क्लियर। इसमें फ़र्क देखिएगा कि यूरो बॉन्ड्स एंड फॉरेन बॉन्ड्स में क्या फ़र्क है, वही सेम कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कीजिएगा सीडीज पे, जो कमर्शियल डिपॉजिट्स पे अप्लाई होगा, ठीक है। यानी सीडीज एक वर्ड यूज किया जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय द फॉरेन बैंक इन फॉरेन करेंसी बट सोल्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स। फॉर एग्जांपल ये जो है चले बुक की यूनाइटेड स्टेट का है और स्लाइड्स भी वहाँ की हैं, तो हम यूनाइटेड स्टेट नहीं, हम पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई फॉरेन का बैंक है, जैसे फॉरेन का बैंक पाकिस्तान में काफ़ी ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे HSBC है फॉर एग्जांपल। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास बार्कलेज था, पहले अब बंद हो गया है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, ये बाहर का बैंक है। तो ये बैंक जो है फॉर एग्जांपल फॉरेन बैंक है, फॉरेन करेंसी में ये कमर्शियल पेपर्स यहाँ पे इशू करते हैं, तो उनको यंकी सीरीज कहा जाएगा। बट वो यहाँ पे हो सकता है, हाँ हो सकता है यहाँ पे वो सेल हो रहे हैं, हो सकता है वो अदर कंट्री में सेल कर रहे हैं, ठीक है। इशुएंस यहाँ पे है, सेलिंग बाहर है, यंकी कहा जाएगा। हमारा तीन चीज़ें इसमें नोट हो जाएंगी, बाहर की ऑर्गेनाइजेशन, बाहर की करेंसी, सेल भी बाहर की जा रहा है, तो दैट इज एन इशू, ठीक है। ट्रेजरी बिल्स हमने डिस्कस कर लिए थे, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स के लिए इसको इशू किया जाता है। सो दीज आर वेरी क्लियर। बैंकर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस जो है वो भी इशू किया जाता है, अलाउ बैंक टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी और गारंटी ऑफ पेमेंट ऑफ वन ऑफ द कस्टमर्स। इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह अगर आप कर रहे होते हैं, जैसे काफ़ी जो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को फुलफिल कर रही होती हैं, क्रेडिट वर्दीनेस के लिए उनको बैंकर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो बैंकर सर्टिफिकेट वो क्या करते हैं, अपने अकाउंट में उतना अमाउंट रख देते हैं, तो बैंक उनको एक सर्टिफिकेट दे देता है कि भाई ठीक है, इनका परचेसिंग पावर इतना है, बैंक इशू द सर्टिफिकेट, बैंकर एक्सेप्टेंस इसको कहा जाता है। जैसे वो बैंक स्टेटमेंट शो किया जाता है ना, फॉर एग्जांपल आप कहीं बाहर पढ़ने जा रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी आपसे जो है बैंक स्टेटमेंट मांग रही होती है कि वाकई हम देखें कि आपके पास इतना अमाउंट है कि नहीं। तो वो जो है इसके लिए क्रेडिट वर्दीनेस देखते हैं कि भाई इसका बैंक स्टेटमेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या है, इसके पास पैसे इस अकाउंट में आते भी हैं कि नहीं आते, जिसके वो चेक्स वगैरह इशू कर रहा है, या जिसके थ्रू वो डिमांड ड्राफ्ट्स वगैरह बनवा रहा है, तो उसके लिए ये देखा जाता है बैंकर एक्सेप्टेंस, ठीक है। बाकी हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या है, और इसकी वेबसाइट भी हमने विजिट की, प्रोजेक्ट्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, ओवरऑल शेयर्स के बारे में भी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है जिस पे शेयर्स जो है वो ट्रेड किए जाते हैं, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, दीज आर रेफर्ड एज पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, वो यहाँ पे स्टॉक्स इशू करेंगी, शेयर्स इशू करेंगी, ठीक है। और इसके हिसाब से आप जो है वेरियस ऑर्गेनाइजेशन में सेक्टर्स होते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन हैं दे आर बिलोंगिंग टू द पर्टिकुलर सेक्टर। सेक्टर्स क्या हैं, सेक्टर्स जो है उनको डिवाइड किया गया है ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्रीज आर पर्टिकुलर सेक्टर फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो सेक्टर्स जो है फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल की जो भी ऑर्गेनाइजेशन होंगी, जो गाड़ियां बनाती हैं, वो किस में आएंगी, ऑटोमोबाइल सेक्टर। इसी तरीके से जो स्पेयर पार्ट्स बनाती हैं वो किस में आएंगी, वो ऑटो पार्ट्स में आएंगी, ऑटो, ठीक है, एक्सेसरीज में। इसी तरीके से सीमेंट इंडस्ट्री है, तो सारे सीमेंट वाली कंपनीज हो गई, लकी सीमेंट हो गया, वेस्ट वे सीमेंट हो गया, अटक सीमेंट हो गया, वो सब किसमें आएंगे, सीमेंट इंडस्ट्री। इसी तरीके से जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे ट्यूबलाइट्स हो गए, बल्ब्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, वो किसमें आएंगे, सब इंजीनियरिंग। फर्टिलाइजर सेक्टर से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, सारे जो दवाएं बनाते हैं वो सब किसमें आएंगे, फार्मास्यूटिकल में।
फूड के जो आइटम्स बनाते हैं जैसे नेस्ले हो गया, यूनिलीवर हो गया, एग्रो हो गया, ये सब इसमें आएंगे। दीज आर एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, और फूड एंड बेवरेजेस भी इसको कहा जाता है। इसी तरीके से वी हैव टेक्सटाइल सेक्टर, जिसमें जो है हमारे पास टेक्सटाइल की कंपनीज आ जाएंगे, लाइक खाटी है, गुल अहमद है, ठीक है, सना सफीनाज है, अल रहीम टेक्सटाइल मिल्स है, ये सब इसमें आ जाएंगे। सो वी हैव वेरियस जो है सेक्टर्स आर अवेलेबल इन द इकोनॉमी। तो आप जो है क्या करना है प्रोजेक्ट के लिए आपने जो है हर जो है सेक्टर में से, बल्कि हर सेक्टर में से नहीं, इट्स अप टू यू, 20 ऑर्गेनाइजेशंस कोई भी सिलेक्ट करनी है और वो डिफरेंट सेक्टर से होनी चाहिए, ठीक है। और प्राइस उनकी ज़रूर आप रिव्यू कीजिएगा कि उनकी प्राइस जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, वो शेयर प्राइस उनकी बढ़ रही है, ऐसा नहीं कि आप लॉस मेकिंग कंपनीज को सिलेक्ट कर लें प्रोजेक्ट्स में। ये एक मैंने डेटा भी शो किया है कि ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं और उनकी ये प्राइस आपने लेनी, ये क्लियरली मार्केट परफॉर्मर्स में आप जाएंगे तो ये प्राइस इनकी सामने शो हो रही होती है। करंट आप उस पर भी जाएंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के पहले पेज पे भी, तो उस पर भी जो है इसकी ओपनिंग प्राइस जो शो हो रही होगी वो आप ले लेंगे, तो दैट इज द मार्केट प्राइस, ठीक है। बाकी ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पार वैल्यू, करंट वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। पार वैल्यू क्या होता है, जिस पे शेयर इशू किए गए। करंट वैल्यू जो इस वक्त उसकी शेयर की वैल्यू है इकोनॉमी में, और मार्केट वैल्यू उसकी इंक्रीज या डिक्रीज कितनी हुई वैल्यू, तो उसको जो है आप मार्केट वैल्यू कहते हैं। सो बेस्ड ऑन जो है फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट हो सकता है उसकी शॉर्ट टर्म, जो उसकी जो है इक्विटी की इन्वेस्टमेंट इज समथिंग जो डिफरेंट वैल्यू शो हो रही हो। अगर आप डिस्कशन करेंगे फॉर एग्जांपल कि सर इक्विटी की वैल्यू तो इतनी शो हो रही है लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज उसकी मार्केट वैल्यू फिर इंक्रीज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल है स्पोल का शेयर था वो 24 रुपीज़ पे इशू हुआ था पाकिस्तान में, बट रेज हुआ और इंक्रीज होते होते वो 300 तक पहुंच गया, 300 रुपीज़ वन शेयर, ह्यूज मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू पर शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। अगर आप जो है एक शेयर की प्राइस इस वक्त क्या है और कंपनी ने शेयर्स कितने इशू किए हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन उसकी पता चल जाएगी। PSX का प्रोजेक्ट आप लोगों के साथ मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था और ये हमने असाइन कर दिया है, इस पर वर्कआउट करें, उसको रिव्यू कर लीजिएगा। जो भी आपको डिफिकल्टीज हो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दोज डिफिकल्टीज एंड दोज थिंग्स एज वेल। तो ये हमारा तकरीबन चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया आज। और जो है वी टॉक्ड अबाउट ऑल द थिंग्स इन द चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमने डिस्कस किया कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स क्या है। वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि आपके पास जो है ओवर द काउंटर मार्केट्स क्या है, कमोडिटी मार्केट्स क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए फॉर एग्जांपल वी हैव कैपिटल मार्केट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वी हैव मनी मार्केट्स, हमने डिस्कस किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का हमने अच्छे तरीके से रिव्यू लिया कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्या है, ठीक है। और इसके अलावा जो है, और इस पर कंप्लीट बुक्स इवन लिखे जा चुके हैं फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस पे। आपने लास्ट सेमेस्टर में फाइनेंशियल बैंकिंग वाला कोर्स भी पढ़ा था, उसमें भी काफ़ी सारे टॉपिक्स आपने कवर किए, पर यहाँ पे हमने उसको डिटेल में कवर कर लिया है कि व्हाट आर द फाइनेंशियल मार्केट्स, उसका रोल क्या है, व्हाट आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनका रोल क्या है, व्हाट इज बैंकिंग एंड बैंकिंग सेक्टर, उसका रोल क्या है, एंड व्हाट आर द फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटीज, उनका रोल क्या है। तो दैट इज वेरी क्लियर टू यू। अब आपके पास क्लियर पिक्चर आ गई है कि फाइनेंशियल सिस्टम के पिलर्स क्या हैं, उसमें डिफ्रेंसिएशन क्या है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का क्या रोल है, और मार्केट्स का क्या रोल है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हमने डिटेल में कवर किया, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। टाइप्स ऑफ जो है मार्केट्स को हमने अच्छे तरीके से कवर किया है, वो आप देख लीजिएगा, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एंड फ्रॉम दिस चैप्टर पर्टिकुलरली 5 to 7 मार्क्स क्वेश्चन विल बी इनटू द मिड टर्म एग्जाम। मिड टर्म एग्जाम में इसमें से ज़रूर आएगा, उसको अच्छे तरीके से रिव्यू कर लीजिएगा, ठीक है जी। बाकी फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग विद द चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम डिस्कस करना शुरू करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं, एनुअल रिपोर्ट्स क्या होती हैं, कैसे ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू करते हैं और उसका पर्पस क्या है, उसमें वेरियस थिंग्स क्या शो की जाती हैं, कैसे उसकी एनालिसिस परफॉर्म की जाएगी, रेशोज एनालिसिस क्या है, ट्रेंड एनालिसिस क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन का पर्सपेक्टिव क्या है, MBA क्या है, EVA क्या है, CPA क्या है, सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे अंदर चैप्टर नंबर 3, ठीक है जी। यहाँ तक आपको कोई भी क्वेश्चन हो
तो you can discuss with me on the WhatsApp group and on the Google Classroom as well. बाकी स्लाइड्स अच्छे तरीके से रिव्यू कीजिएगा एंड नोट द थिंग्स। जो भी इसमें से आपको नहीं आया समझ में तो मस्ट आस्क द क्वेश्चंस इन फेस टू फेस क्लास, वो हम उसमें से कवर कर लें। ठीक है जी, चलें जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।